Hello guys, welcome back on my YouTube channel which is NEET Expert and myself Dr. Minu Sharma. So how are you guys? I hope you all are fine and good, and I'm also good. So in last lecture we discussed about histology of alimentary canal. There are 4 different layers are present in alimentary canal. Innermost layer is mucosa, then outermost some mucosa, then outer muscularis layer, and outermost is serosa. Okay, all 4 layers show modification in different parts of alimentary canal. Then our today's topic is digestive glands. There are mainly 3 types of digestive glands are present, which is salivary gland, liver and pancreas. Okay, so mainly 3 types of digestive glands are present. First one is salivary gland. Salivary glands which secrete saliva. Next, liver. It is largest gland of our body. It secretes bile juice. Then pancreas. It is mixed in nature exocrine and endocrine. It secretes pancreatic juice. Okay, so mainly 3 types of digestive glands are present, which is salivary glands which secrete saliva, liver which secrete bile juice and pancreas which secrete pancreatic juice. अब अपन इनके बारे में 1 by 1 डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं salivary glands. Okay, so mainly 3 types of salivary glands are present. Mainly 3 types of salivary glands are present. First one is parotid. Parotid salivary gland. It present in chicks. Okay, and its duct is known as Stinson's duct. Okay, next second है सबमैंडिबुलर और सबमैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड. सबमैंडिबुलर और सबमैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड. इट प्रेजेंट इन लोअर जो. ओके, एंड इट्स डक्ट इज नोन एज वार्टन्स डक्ट. And third one is sublingual salivary gland. It present below the tongue. Okay, and its duct is known as duct of Rivinus or Bartholin's duct. Okay, so salivary glands are mainly 3 types, which is first one is parotid salivary gland. It present in chicks, and parotid salivary gland it opens in its duct is Stinson's duct. Second one is submandibular or submaxillary salivary gland. Submandibular or submaxillary salivary gland. It present in lower jaw, and its duct is known as Wharton's duct. And third one is sublingual salivary gland. It present below the tongue, and its duct is known as duct of Rivinus or Bartholin's duct. Salivary glands का जो secretion होता है वो saliva कहलाता है, और ये ओपन होती है बकल कैविटी के बाहर की तरफ ओपन होती है, और ये अपने secretions को बकल कैविटी में secrete करती है, और इसके secretions होते हैं उनको बोलते हैं saliva. Okay, so salivary glands बकल कैविटी के बाहर ओपन होती है और ये अपने secretions को बकल कैविटी में सिक्रेट करती है, और इनके जो सिक्रेशंस होते हैं उसको बोलते हैं सलाइवा. ठीक है, नेक्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है अपनी लीवर.
नेक्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है अपनी लीवर. ओके, it is largest gland of our body. Largest gland of our body. It is largest gland of our body. Okay, and its weight is 1.2 to 1.5 kg. Okay, next it is situated in abdominal cavity just below the diaphragm. Okay, ये कहाँ सिचुएटेड होती है? सिचुएटेड इन एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम. ओके, इसकी पोजीशन होती है ओके. सो लीवर इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी और इसका वेट होता है 1.2 to 1.5 kg. कहाँ सिचुएटेड होती है? एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होती है जस्ट बिलो द डायफ्राम. ओके, उसके बाद में इसमें लीवर में दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं, लेफ्ट लोब एंड राइट लोब. ये दोनों लोब्स आपस में एक लिगामेंट के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं जिसको बोलते हैं फाल्सीफॉर्म लिगामेंट. इसको बोलते हैं फाल्सीफॉर्म लिगामेंट. ओके, और इनमें क्या होता है, इन लोब्स में छोटे छोटे लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं हिपेटिक लोब्यूल्स. और हिपेटिक लोब्यूल्स आर द हिपेटिक लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. और हिपेटिक लोब्यूल्स क्या होते हैं? इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर. ओके, हिपेटिक लोब्यूल्स में क्या होता है कि हिपेटिक सेल्स प्रेजेंट होती है. हिपेटिक लोब्यूल्स में हिपेटिक सेल्स प्रेजेंट होती है. ओके, और ये क्या करती है? बाइल को सिक्रेट करती है. ओके, बाइल को सिक्रेट करती है. और ये हिपेटिक सेल्स स्पेशल टाइप से अरेंज होती है जिनको बोलते हैं कोड्स, हिपेटिक कोड्स. ओके, हिपेटिक कोड्स. ओके, सो लीवर, इसमें दो लोब्स होते हैं, लेफ्ट लोब एंड राइट लोब. ये दोनों लोब आपस में एक लिगामेंट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं जिसको बोलते हैं फाल्सीफॉर्म लिगामेंट. उसके बाद में इन लोब्स में छोटे छोटे लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं हिपेटिक लोब्यूल्स. ये हिपेटिक लोब्यूल्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं किसकी? लीवर की. ओके, उसके बाद में ये हिपेटिक लोब्यूल्स में हिपेटिक सेल्स प्रेजेंट होती है और ये हिपेटिक सेल्स क्या करती है? बाइल को सिक्रेट करती है. ओके, और हिपेटिक सेल्स स्पेशल टाइप से अरेंज होती है जिनको बोलते हैं हिपेटिक कोड्स. ओके, इन हिपेटिक लोब्यूल्स के ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल. हिपेटिक लोब्यूल्स के ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की एक कवरिंग प्रेजेंट होती है. कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग, इसको बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल. ग्लिसन्स कैप्सूल. ओके, हिपेटिक लोब्यूल्स के ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की एक कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल. ओके, नेक्स्ट एक मिनट में इसको वापस समराइज कर देती हूँ. लीवर ये क्या होती है कि लार्जेस्ट ग्लैंड होती है अपनी बॉडी की. इसका वेट होता है 1.2 to 1.5 kg और ये सिचुएटेड होती है कहाँ पे? एब्डोमिनल कैविटी में जस्ट बिलो द डायफ्राम. ओके, इसके बाद में इसमें दो लोब्स होते हैं, लेफ्ट लोब एंड राइट लोब. ये दोनों आपस में फाल्सीफॉर्म लिगामेंट के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं. उसके बाद में इन लोब्स में बहुत सारे लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं हिपेटिक लोब्यूल्स.
हेपेटिक लोब्यूल्स क्या होते हैं कि ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं किसकी, लीवर की। इन हेपेटिक लोब्यूल्स में बहुत सारी हेपेटिक सेल्स प्रेजेंट होती है और ये स्पेशल टाइप से अरेंज होती है और ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है जिनको बोलते हैं हेपेटिक कॉर्ड्स। ये हेपेटिक सेल्स क्या करती है, बाइल को सिक्रेट करती है। ओके, हेपेटिक लोब्यूल्स के ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की एक कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं, ग्लिसन्स कैप्सूल। ओके, ये बाइल क्या होता है, हेपेटिक सेल्स ने बाइल सिक्रेट किया। ये बाइल हेपेटिक डक्ट के थ्रू किस में जाता है, हेपेटिक डक्ट के थ्रू ये जाता है गोल ब्लैडर में, गाल ब्लैडर में जाता है। और गाल ब्लैडर में क्या होता है, ये बाइल स्टोर्ड एंड कंसंट्रेट होता है। ओके, स्टोर्ड और कंसंट्रेट होता है, ठीक है। बाइल गोल ब्लैडर की जो डक्ट होती है उसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। गोल ब्लैडर की जो डक्ट होती है उसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। तो सिस्टिक डक्ट से जो बाइल निकलेगा वो और हेपेटिक डक्ट से जो बाइल निकलेगा वो, ये दोनों मिलके बनाते हैं कॉमन बाइल डक्ट। और कॉमन हेपेटिक डक्ट। ओके, ये बनाते हैं कॉमन बाइल डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट। सो बाइल, हेपेटिक सेल्स बाइल को सिक्रेट करती है, हेपेटिक सेल्स बाइल को सिक्रेट करती है। ये बाइल हेपेटिक डक्ट के थ्रू गॉल ब्लैडर में जाता है। गॉल ब्लैडर में ये बाइल स्टोर और कंसंट्रेट होता है। गॉल ब्लैडर की जो डक्ट होती है उसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। सो सिस्टिक डक्ट का जो सिक्रेशन और हेपेटिक डक्ट का सिक्रेशन मिलके एक कॉमन डक्ट बनाते हैं जिसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट। ओके, उसके बाद में अपन देखते हैं कि व्हाट इज बाइल। बाइल क्या होता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे व्हाट इज बाइल। ये क्या होता है, येलो कलर का एल्केलाइन जूस होता है, येलो कलर एंड एल्केलाइन इन नेचर। मीन्स इसकी पीएच होती है, पीएच ऑफ बाइल जूस इज 7.4 to 7.6. Okay, bile is not a true digestive juice. It is not a true digestive juice. Not true digestive juice. True digestive juice क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स एब्सेंट होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर एब्सेंट। ओके, सो बाइल येलो कलर का एल्कलाइन जूस होता है जिसकी पीएच होती है 7.4 to 7.6। उसके बाद में ये ट्रू डाइजेस्टिव जूस नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स एब्सेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट फंक्शन ऑफ बाइल। बाइल के क्या क्या फंक्शन होते हैं। फंक्शन ऑफ बाइल, ये क्या करता है, HCl के न्यूट्रलाइजेशन में हेल्प करता है, हेल्प इन
न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl। सेकेंड ये क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। थर्ड, इट एब्जॉर्ब फैट एंड फैट सोल्यूबल विटामिन्स, फैट एंड फैट सोल्यूबल विटामिन्स का क्या करता है ये, एब्जॉर्प्शन, absorption of fat and fat soluble vitamins, and last it activate lipase। okay, so what is the function of bile? help in neutralization of HCl, HCl की न्यूट्रलाइजेशन में हेल्प करता है। सेकेंड, फेट का इमल्सिफिकेशन करता है। थर्ड, फेट और फेट सोल्यूबल विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन करता है। और फोर्थ, ये लाइपेज को एक्टिवेट करता है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीवर? फंक्शंस ऑफ लीवर, फंक्शंस ऑफ लीवर। सो इसका फर्स्ट फंक्शन है, इट secretes and synthesize bile। secretes and synthesize bile। सेकेंड इसका फंक्शन है, इट हेल्प इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, हेल्प इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट, इट स्टोर फैट, स्टोरेज ऑफ फैट। नेक्स्ट इसका फंक्शन है, इट हेल्प इन डीएमिनेशन एंड यूरिन फॉर्मेशन, deamination and urine formation। and last इसका फंक्शन है, it help in detoxification, detoxification, it help in detoxification। so what is the function of liver? secrete and synthesize bile, हेल्प इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ये अपन देखते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में कैसे हेल्प करता है। नेक्स्ट, स्टोरेज ऑफ फैट, हेल्प इन डीएमिनेशन एंड यूरिन फॉर्मेशन। एंड लास्ट, इट हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं व्हाट इज द फंक्शन, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में कैसे हेल्प करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। सो फर्स्ट ये क्या करता है, ग्लाइकोजेनेसिस। जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। सो ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ओके, ये हेल्प करता है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन में, ग्लाइकोजेनेसिस। ओके, सेकंड है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मीन्स, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। ओके, सो जब ब्लड में शुगर का लेवल कम होने लगता है, जब ब्लड शुगर कम होने लगती है तो ग्लाइकोजन का वापस से ब्रेक डाउन होता है, किसमें,
ग्लूकोज में. ओके, सो व्हाट इज ग्लाइकोजेनोलाइसिस? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज. थर्ड है ग्लूकोनियोजेनेसिस. व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस? नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्टेंस like amino acid and fatty acid are converted in glucose, so it is known as gluconeogenesis. And fourth one is glyconeogenesis. ग्लाइकोनियोजेनेसिस में क्या होता है कि जो मसल्स में लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लाइकोजन में. ओके, सो ऑल फोर टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज ग्लूकोजेनेसिस? ग्लाइकोजेनेसिस. जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, ग्लाइकोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन. सो ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है किसमें? ग्लाइकोजन में. ओके, सेकेंड इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस. लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन. सो जब ब्लड शुगर कम होने लगती है तो ग्लाइकोजन का वापस से ब्रेकडाउन होता है किसमें? ग्लूकोज में. थर्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस. जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन. सो नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्टेंस लाइक एमिनो एसिड एंड फैटी एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज. लास्ट वन इज ग्लाइकोनियोजेनेसिस. मसल्स में जो लैक्टिक एसिड होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, सो दिस इज आवर टुडेज टॉपिक. आई होप गाइस you understand, and if you have any doubt then comment me in comment section. Thank you.